Question number 2, class 10th. The coach of cricket team buys 3 bats and 6 balls for Rs 3900. Later she buys another bat and 3 more balls of the same kind of for Rs 1300. Represent this situation algebraically and geometrically. मीन्स आपको जो वो यहाँ पे भी क्या करना है, अलजेब्राइकली जो वो इसको रिप्रेजेंट करना है और ज्योमेट्रिकली भी रिप्रेजेंट करना है. To let the cost of one bat be X and cost of one ball be Rs by. Here you also write Rs X and Rs by. Then according to first condition, the cost of 3 bats and 6 ball is Rs 3900. It means 3x plus 6y is equal to 3900. So here 3 is common, so you can divide this by 3 throughout the equation. Then x plus 2y is equal to 1300. Mark this equation number 1. According to second condition, cost of a bat and 3 more balls is 1300. Means x plus 3y is equal to 1300. So this becomes equation number 2. So this is the algebraically representation of the situation. Thank you. तो यहाँ पे आपने इसको अलजेब्राइकली जो वो क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया. अब क्या आपके पास ज्योमेट्रिकली जो वो आपने इसको रिप्रेजेंट करना है. तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ज्योमेट्रिकली जब आपने इसको ड्रॉ करना है तो उसके लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 या ग्राफिकली इसका सोल्यूशन जो वो आप लिख सकते हो. फ्रॉम इक्वेशन 1 भी है वो आपके पास थी 3x plus 2y is equal to 1300. Here x is equal to minus 2y plus 1300. जाओ उधर जाओ. तो यहाँ पे आपके पास x इज इक्वल टू माइनस 2y प्लस 1300. मीन्स इसने आपको क्या किया, जो y वेरिएबल है उसको आप राइट हैंड साइड में लेंगे. अब यहाँ पे आपने वैल्यू जो वो x की पुट करनी है. अगर आप x की वैल्यू जो वो क्या पुट करते हो, यहाँ पे 0 पुट करते हो. तो 0 पुट करोगे तो क्या आएगा आपके पास यहाँ पे 650. मीन्स 2 के साथ जो वो डिवाइड होगा 650. तो 650 लेकर के हम क्या करें इसको, मीन्स 100 में ही लें. तो यहाँ पे आपके पास अगर 100 लेंगे तो क्या होगा, आपके पास 1300 है. 1300 है, यहाँ से 100 जो वो माइनस हो जाएगा, मीन्स 1200 आ जाएगा. तो 600 आएगा. तो पुट x इज इक्वल टू 100 इन अबव. तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, 100 इज इक्वल टू माइनस 2y प्लस 1300. तो माइनस 2y अगर इधर लेके आते हैं तो 2y हो जाएगा. 2y इज इक्वल टू 1300 माइनस 100. देन 2y इज इक्वल टू 1200 and y is equal to 1200 over 2
it means 600. So when x is equal to 100, then y is equal to 600. This becomes point number 1. Now again you have to put the value of x and get the value of y. Put x is equal to, if you put now 200, then this becomes 1300 minus 200 or plus 200, then 1100 or 1500, means then also value comes in between 600 500 and 600 and 700 and 800. So we have put here 300, so this becomes 500 and 900. If there is addition, then 900, or if there is subtraction, then 500. Oh sorry, there is addition, then 1600, so 800, and if subtraction, then becomes 500. So put x is equal to 300, then 300 is equal to minus 2y plus 1300. So here 2y comes on the left side. 2y is equal to 1300 minus 300. 2y is equal to 1000, and y is equal to 1000 over 2, that is 500. So here 500. When x is equal to 300, then y is equal to 500. So there are two values of x and two values of y. Now what you do here, you have to draw table for these values, that is for the value of x and y. When the value of x is 100, then value of y is 600, and second, when value of x is 300, then value of y is 500. तो यहाँ पे आपके पास जो वो वैल्यूज़ आ गई x की और y की. जब आपके पास x जो वो 100 था तो y की वैल्यू थी 600, और जब x की वैल्यू 300 है तो y की वैल्यू आ गई 500. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव गेट दीज वैल्यूज. नाउ वी हैव सॉल्व्ड इक्वेशन नंबर 2. फ्रॉम इक्वेशन 2, we have your second equation is x plus 3y is equal to 1300. This is your second equation. Now put or you write x is equal to minus 3y plus 1300. यहाँ पे हम ये क्यों कर रहे हैं कि x को जो है वो हमने लेफ्ट हैंड साइड में रखा है और y को हम राइट हैंड साइड में लेके जा रहे हैं, कि आप लोग जो वो कंफ्यूज ना हो कि आपने जो वो x की वैल्यू पुट की है या y की वैल्यू. समटाइम्स हम लोग क्या करते हैं कि वैल्यू हम x की पुट कर रहे हैं लेकिन उसको हम y में जो वो लिख देते हैं कई बार. तो ऐसा ना हो, इसलिए जो वो पहले हम इसको जो वो x को कहाँ लेके जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में, और y जो वो उसको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं राइट हैंड साइड में, जिससे कि आपके पास जो वो कन्फ्यूज़न ना हो कि आपने क्या करना है, किस में जो वैल्यू पुट करनी है. नहीं तो हम वैल्यू जो वो हमें यहाँ पे लिखते हैं कि पुट x इज इक्वल टू 100 या समथिंग, और उसको हम पुट कर देते हैं कई बार y में. मीन्स ऐसा ना हो. तो हियर पुट x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे भी क्या आपके पास, अगर आप 100 पुट करते हो तो 100 में क्या होगा, 1300 है, यहाँ पे 100 जो वो माइनस होगा मीन्स 1200, तो 3 से ये डिवाइड हो जाएगा. तो पुट x इज इक्वल टू 100 इन एबव. तो यहाँ पे 100 इज इक्वल टू माइनस 3y प्लस 1300. तो 3y इज इक्वल टू 1300
माइनस 100, तो y इज इक्वल टू 1200 over 3, that is 400. Here when x is equal to 100, then y is equal to 400. And second, now put x is equal to, अब x की वैल्यू जो वो आप कितनी पुट करोगे कि आपके पास क्या है, यहाँ पे ये इन बिटवीन ना आए, मीन्स जैसे 100 और 200 के बीच में वैल्यू ना आए, तो यहाँ पे आपके पास 1300 है, 1300 है मीन्स 3 के टेबल में 9 आएगा या 15 आएगा। तो यहाँ पे अगर माइनस हो रहा है मीन्स यहाँ पे अगर हम 400 पुट करते हैं तो 900 आएगा। तो पुट x इज इक्वल टू 400, देन 400 इज इक्वल टू, या इन अबव लिख दीजिए यहाँ पे भी, 400 इज इक्वल टू माइनस 3y प्लस 1300 एंड 3y इज इक्वल टू 1300 माइनस 400, तो y इज इक्वल टू 900 ओवर 3, 300 इज इक्वल टू 300। तो व्हेन x इज इक्वल टू 400 देन y इज इक्वल टू 300। तो यहाँ पे भी आपके पास वैल्यू जो वो आ गई। इसके लिए भी आप टेबल जो वो यहाँ पे बनाएंगे x और y के लिए। x की वैल्यू आपके पास आ गई फर्स्ट 100, देन y की वैल्यू आ गई आपके पास 400, सेकंड आपके पास 400, देन 300। तो अब यहाँ पे आपके पास वैल्यू जो वो आ गई। तो यहाँ पे भी आपने जो वो टेबल ड्रॉ कर लिया। अब टेबल ड्रॉ कर लिया तो उसके बाद क्या करना है, आपको जो वो ग्राफ जो वो ड्रॉ करना है। एक बार आप अगर देखना चाहते हैं तो फिर से आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमने जो वो क्या किया, जो इक्वेशन नंबर 2 थी उसको जो वो लिया, उसके बाद उसको हमने रीअरेंज किया, उसके बाद x की वैल्यू जो पुट की, फर्स्ट पॉइंट के लिए हमने सॉल्व किया। उसके बाद जब आपके पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो वो आ गए तो उसके बाद आपने x की वैल्यू अगेन पुट की, और उसके बाद सेकंड जो वो आपके पास वैल्यूज आपने x और y की फाइंड आउट की। तो यहाँ पे आपके पास x और y का जो वो आपके पास कोऑर्डिनेट आ चुके हैं, और जो इक्वेशन नंबर 1 थी उसको भी हमने सॉल्व किया था, तो उससे भी आपके पास ये टेबल जो वो बन चुका है। तो यहाँ पे टेबल 1 2 अगर आप देना चाहते हैं तो इसको जो वो टेबल 2 दे सकते हैं, मीन्स ये इक्वेशन नंबर 2 के लिए हो गया, और दूसरा जो था आपने पहले प्रिपेयर किया था वो इक्वेशन नंबर 1 के लिए। तो अब क्या है आपके पास, हमने फिर ग्राफ पेपर जो वो यूज़ करना है यहाँ पे, मीन्स ग्राफ पेपर की हेल्प से ही हमने जो वो कोऑर्डिनेट क्या करने होते हैं, ड्रॉ करने होते हैं। लेकिन अगर हमारे पास ग्राफ पेपर नहीं है तो हम स्केल की हेल्प से जो वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेट जो वो उनको ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, स्केल ले ली, स्केल के साथ जो वो आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज अ नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव पॉइंट है, नेगेटिव में है नहीं, तो यहाँ पे वाई एक्सिस, और ये नीचे जो वो नेगेटिव वाई एक्सिस। अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे नेगेटिव में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे अब हमने पॉइंट जो मार्क करने हैं, तो पॉइंट मार्क करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे स्केल जो वो लीजिए और उसको क्या कीजिए, यहाँ पे जो सेंटीमीटर आपके दिए होते हैं उसको आपने सेंटर लाइन के ऊपर यहाँ पे रख लिया। अगर आपको दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे मैंने 5 जो वो इसको रखा हुआ है। अब 5 के बाद मैंने 6 जो वो इसको 1 7 2 8 3 4 5 6 7 8 मीन्स इस तरह से पॉइंट जो मैंने एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर मार्क कर लिया। अगर नेगेटिव में है तो नेगेटिव में भी आप मार्क कर लीजिए। यहाँ पे नेगेटिव के ऊपर मैंने मार्क कर लिया। उसी तरह से आपने अलोंग वाई एक्सिस है, यहाँ पे भी और अगर नेगेटिव वाई एक्सिस में है तो यहाँ पे भी आप मार्क कर सकते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट थे आपके 100 200 300 इस तरह से आ रहे थे। अब इसको मैं यहाँ पे आपका रीज़न आ गया
तो यहाँ पे 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 इस तरह से लिख लिए। इधर भी 100, 200, 300, 400, 500, 600 इस तरह से पॉइंट मैंने लिख लिए। इस तरफ नेगेटिव एक्सिस में -100, -200, 300, -400, -100, -200 एंड सो ऑन। जो भी आप रिप्रेजेंट जो वो कर लीजिए इनके पॉइंट। अब उसके बाद आपको जो वो क्या करना है, पॉइंट जो वो देखने हैं। तो फर्स्ट टेबल था उसमें आपके पास वैल्यू आई थी 100 एंड 600, मीन्स एक्स की वैल्यू कितनी है 100 है और वाई की वैल्यू जो वो 600 है। तो मीन्स अगर आप यहाँ पे देखेंगे स्ट्रेट तो ये यहाँ जैसे आएगा आपके पास। अगर इसको स्केल के साथ आपने मेजर करके लगाना है तो यहाँ पे स्केल के साथ भी आप मेजर करके लगा सकते हो। मीन्स आपको सीधे दिखाई दे रहा है कि 1 सेंटीमीटर जो वो यहाँ पे है, तो 1 सेंटीमीटर ही हमने नीचे लिया था, तो इसके सामने जो वो ये आ गया पॉइंट, दैट इज़ 100 एक्स की वैल्यू आ गई और 600 वाई की। तो ये पॉइंट आ गया आपके पास 100 एंड 600। उसके बाद दूसरा पॉइंट था आपके पास 300 एंड 500। अब 300 एक्स की ये आ रही है और 500 ये आ रहा है। तो यहाँ पे भी हम इसको जो वो इसकी स्ट्रेट लाइन में 3 के ऊपर मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया ये। तो यहाँ पे आपका ये 300 जो वो इस चीज़ को, इस लाइन को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। तो ये पॉइंट आ गया आपके पास 300 एंड 500। अब इस लाइन को आप मिला दीजिए दोनों पॉइंट्स को, इनको। अब ये मैंने लाइन जो वो ड्रॉ कर दी। तो ये रिप्रेजेंट कर रही है आपके पास फर्स्ट इक्वेशन थी x + 2y = 1300 को। उसके बाद सेकंड आपके पास टेबल है, उसमें आपके पास x की वैल्यू 100 आ रही है, y की वैल्यू 400। तो मीन्स यहाँ जैसे आएगी ये x की वैल्यू 100 और y की 400। और सेकंड पॉइंट आपके पास 400 एंड 300, x की वैल्यू आपके पास 400 और y की वैल्यू 300। मीन्स यहाँ जैसे जो आपकी ये आएगी। तो ये मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसको भी आप मिला दो यहाँ से इस तरह। तो ये आपके पास जो वो ग्राफ बन गया। सेकंड इक्वेशन जो थी उसको आपने रिप्रेजेंट कर दिया x + 3y = 1300। तो ये दोनों जो वो आपके पास बन गई। लेकिन आपने जो वो यहाँ पे पेन यूज़ नहीं करना है। जब आपने ग्राफ ड्रॉ करना है तो आपने पेंसिल के साथ जो वो ग्राफ ड्रॉ करना है। अब अलॉन्ग एक्स एक्सिस और अलॉन्ग वाई एक्सिस वही है, ग्राफ पेपर के ऊपर आप ड्रॉ कर रहे हो तो आपको स्केल जो वो लिखनी पड़ेगी यहाँ पे अलॉन्ग एक्स एक्सिस। यहाँ पे आपके पास 10 डिविजन्स होगी। तो 10 डिवीज़न = अब आप RS को यहाँ पे कर रहे थे 100 यूनिट लिख दीजिए इसको। तो 10 डिवीजन = 100 यूनिट्स अलॉन्ग वाई एक्सिस। यहाँ पे भी क्या आपने 10 डिवीज़न जो वो उनको 100 के बराबर लिया है। तो 10 डिवीज़न = 100 यूनिट्स। मीन्स आपकी स्केल, ये स्केल जो वो आपने थोड़ा सेपरेट करके लिखना है कि ये ऊपर ही आ जाए। यहाँ पे स्पेस कम था इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। तो ये इसको थोड़ा अलग से ऊपर ही मार्क करना होता है कि ये स्केल जो वो आपके अलॉन्ग एक्स एक्सिस और अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो क्वेश्चन नंबर ये 2 हो गया।